In today's class, I'm going to explain the idea of intersectionality. And we know this is very key idea when we talk about feminist theory of justice. Why? Because in early stage of justice or discussion or debate on justice, by keeping the view of women in context, we have seen how these stages progressed ahead, and first with the inclusion of a name, or what you can say, the word in where the women's are included. And then second stage was what? That individuals, how they are related with different groups in group, or better to say individual in groups. So from there the idea of intersectionality came into picture. जैसा कि आपको पता होगा कि मैं प्रारंभ में बार बार ये चीजें बता रहा हूं कि कैसे जो न्याय का नारीवादी सिद्धांत थे वो एक लंबा अरसा लिया इंटरसेक्शनल थ्योरी तक पहुंचने में। और अगर मैं इस पे बात करूं तो इसमें एक जो बड़े थिंकर हैं, जो बड़े विचारक हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है इंटरसेक्शनल थ्योरी को लेकर, और वो जो थ्योरिस्ट है एक वीमेन है, और वो एक ब्लैक वीमेन है। ब्लैक वीमेन बोलने का मतलब ही है क्योंकि वो अगर ब्लैक वीमेन ना होते तो उनके जहन में, उनके मन में इंटरसेक्शनल थ्योरी जैसा कोई आइडिया आता नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि प्रारंभ जब सेकंड स्टेज में जब चर्चा हुआ 1960s के बाद, तो आई एम यंग आए, है ना, सुसान मोलर ओकिन आए, ये सारे लोग आए। लेकिन हम जो नाम ले रहे हैं, जो बड़े स्कॉलर में काउंटेड हैं, सुसान मोलर ओकिन, ये वाइट वीमेन है। और इवन जो पायनियर फेमिनिस्ट थे, Mary Wollstonecraft, she was also a white woman. And obviously means this is a different aspect on which Kimberly Williams Crenshaw talks on, and that is what intersectionality or intersectionality theory. And obviously C is what you can say, a clear understanding or clear, what you can say, arguments pertaining to this theory. And what is that argument? So to understand that argument, I will try to explain few things differently so that everything should come together and the idea of intersectionality can be understood very easily. And what is that? If I say, for example, everyone be ready to answer if I ask some question. सबको ready रहना जब मैं उनसे कोई सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं पहला सवाल ईशिका से पूछना चाहता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप अपनी पहचान बताएं। ईशिका, एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। कोई भी विद्यार्थी जो अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कृपया बताएं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा तो वैसे सब लोग अपने बारे में बताएंगे। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा सबसे पहले कि माय नेम इज अविनाश कुमार, आई एम टीचिंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। खुशी, क्या आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? यस सर। ठीक है, बताइए क्या बताएंगे, अगर बताना कहीं भी आपको इंट्रोड्यूस करना होगा तो। सर माय नेम इज खुशी कुमारी ओके एंड आई लिव एट नवादा। ओके As far as my family concerned, I have three sisters and one brother, ओके and I'm living. Oh, sorry. ओके। So the information given by Khushi can be said like this also. Obviously, she is a student of political science first.
She hails from Bihar, Nevada, and ultimately Indian. She is holding Indian nationality, and as well as she is a woman. So if I, what you can say, transcript, or better to say, means clearly divide all this information into three parts. Like she is a woman, first identity. Second, she is a student, second identity. Third, she is from Bihar, third identity. And at larger context, she is from India. Okay. And if I we can say a racial setup, I don't know what is the racial setup, but by and large, it is conceived that in Bihar, those who are living in Bihar, either Dravidian or Aryan or blend of that. And obviously, in Bihar, you are living, then you must having some religion, and I most probably you must be belonging to Hindu religion, and must be having caste. So we have chalk out many more identifiers. So these identifiers are the keys to explain the intersectional theory given by Kimberly Williams Crenshaw. Why I'm talking so? So let us first go to the first slide where I wanted you to see why I'm talking like this. And you will come to know, okay, this is the main reason. कैन आप लोगों को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। अब Yes, sir. स्क्रीन पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है पढ़ के बताइए। कौन पढ़ के बताएंगे? हु इज रेडी? किनको पढ़ना है कृपया देख के पढ़ें। इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग ऑफ आइडेंटिटीज, फिर एबिलिटी है, उसमें मेंटल हेल्थ है, जेंडर एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है, रेस है, फर्टिलिटी है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लैंग्वेज है, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, एज, नेशनलिटी, कल्चर, हॉबीज, फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, मार्शियल स्टेटस, एथेनिसिटी, यही सब। ओके, सब लोग देख लिए? तो जितने भी सर्किल है, आप सोच रहे हैं ये इस सर्किल का तो मैं भी हिस्सा हूँ। इस सर्कल की जैसे नेशनलिटी बोलेंगे तो सभी इंडियन से यहाँ पे हम लोग, है ना? फिर अब नेशनलिटी के जस्ट बगल में पहुंचे और बात करें किस पे, कि कल्चर क्या है। तो बिहारी कल्चर या हिंदू कल्चर या वैदिक कल्चर या इस्लामिक कल्चर या बुद्धिस्ट कल्चर या सिख कल्चर, कुछ भी हो सकता है ना? फिर और थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो जेंडर आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेल हूँ, सॉरी आई एम नॉट मेल, आई एम मेन, बेटर टू से आई एम मेन एंड यू ऑल आर वीमेन। why I'm saying men and women? Because male and female is biological identity. What is that? Biological identity. But when I say men and you all are women, then it is gender identity. ये चीजें समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बढ़ूंगा। Yes. पर्सनालिटी, सबकी कोई ना कोई पर्सनालिटी हो कि नहीं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम मिडवे चलना चाहते हैं, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से दुश्मनी, मतलब ऐसा मिला के चलने वाले। कोई बोला नहीं, मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो ये पर्सनालिटी, आपका आउटलुक क्या है? पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट आउटलुक, इट कॉम्प्राइजेज ऑफ मेनी मोर थिंग्स। कि आपकी रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, सोच क्या है ना, दिखते कैसे, व्यवहार क्या है, सारे चीज मिला के पर्सनालिटी बनता है। एज होगा, कल्चर होगा, फिजिकल हेल्थ होगा कि कोई वीक होगा, कोई स्लिम होगा, कोई हेल्दी होगा, कोई बल्की बॉडी होगा, हॉबीज होगा, एजुकेशन होगा, एथनिसिटी जैसे नागा, मिजो, मणिपुर, ये इथनिक है, मैरिटल स्टेटस मीन सिंगल, मैरिड, बैचलर, समथिंग लाइक दैट। देन लोकेशन बिहार नवादा, रिलीजन हिंदू, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, क्लास सेमेस्टर 1, बीए सेमेस्टर 1 23-27, लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली हिंदी एंड इंग्लिश, जेंडर एक्सप्रेशन एबिलिटी, आप आर्ट भी कर सकते हैं, स्पीच भी अच्छा से दे सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, मेंटल हेल्थ गुड, किसी का बैड भी हो सकता है। फिर ये सारी चीजें इसमें, अपियरेंस, किसी का फेशियल सेटअप, नोज लंबा, स्किन ब्लैक, है ना, रेस,
आर्यन, द्राविडन, मिक्स, कॉकस, निग्रो, मेनी मोर रेसेस आर देयर। तो ये सारे क्या हैं? आइडेंटिफायर्स हैं। दीज आर नथिंग बट आइडेंटिफायर्स, और बेटर टू से आइडेंटिटी मार्कर। ये क्या है सभी? आइडेंटिटी मार्कर। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। कोई Yes, कोई sir. ऐसा कोई ऐसा विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि ये चीजें थोड़ा अलग है, या फिर से री एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी? सर एक बार और रिपीट करना। ठीक है, जो भी मैंने शब्द के हिसाब से एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें तो समझ गए कि नेशनलिटी क्या है, फर्टिलिटी क्या है, यस सर। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। जैसे पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई बोले मैं आरजेडी का समर्थक हूँ, कोई बोलेगा कि मैं यस। बीजेपी का समर्थक हूँ, कोई बोलेगा कांग्रेस का समर्थक, कोई बोलेगा AIMIM का समर्थक, कोई बोलेगा जदयू का समर्थक हूँ। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल एफिलिएशन आप बता रहे हो, है ना? उसी तरह आपने यस। सुना होगा यस सेक्सुअल सर। ओरिएंटेशन में बहुत तरह के हो सकते हैं। आप जानते होंगे क्योर, स्ट्रेट, बहुत तरह के आइडेंटिटी। लोकेशन, नवादा, बिहार, पटना, दिल्ली, ऐसे करके ये दीज आर लोकेशन। मेंटल हेल्थ, गुड, बैड, डिस्टर्ब, इथनिसिटी, नागा, मिजो, कुकी, समथिंग लाइक दैट। मैरिटल स्टेटस, व्हाट इज दैट? सिंगल, मैरिड, एजुकेशन, ग्रेजुएशन, PG, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरल, फिजिकल हेल्थ, ये सारे क्या हैं? आइडेंटिटी मार्कर्स। इतनी चीज समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए, यस सर। सब सर्किल में है। अगर मैं रेस को देखूं तो वो सर्कल में है, जेंडर आइडेंटिटी को देखूं तो वो सर्कल में है, एज को देखूं तो सर्कल में है, नेशनलिटी को देखूं तो सर्कल में है। और सभी सर्कल अलग थलग कोई नहीं है, कोई ना कोई एक दूसरे को ओवरलैप। जैसे आपने बच्चे में 5 क्लास में इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा है कि नहीं? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है, ऐसा पढ़ा यस है? सर। तो सेम देख रहे हैं यस कि सर हर, पढ़ा है। क्या निशा कुछ बोले थे? ओके, ठीक है। तो मोटा मोटी आप देख पा रहे हो सब सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इसको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, या ओवरलैपिंग। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। वेन डायग्राम वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, 8 या 9th में पढ़ना है। वेन डायग्राम पढ़े हैं आप लोग? या कोई रीजनिंग पढ़े, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि एक सर्किल बनाते ए, देन बी, बीच में ओवरलैपिंग यस हो रहा सर। है ना? तो सेम चीज है, ये डिफरेंट यस सर। आइडेंटिटी, यस सर। डिफरेंट आइडेंटिटी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इतना तक तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, नो सर। अब थोड़ा सा इसके चीजों पे आते हैं। अब ये जो इंटरसेक्शनलिटी है, ये किम्बरले विलियम्स क्रेनसॉ के द्वारा 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1989 में। अब कौन है किम्बरले? देखते हैं। ये है किम्बरले, इनका फेस देख सकते हैं, पहचानना चाहिए। ब्लैक वीमेन है। किम्बरले क्रेनसॉ अमेरिकन सिविल राइट्स एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, और साथ में UCLA स्कूल ऑफ लॉ एंड कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर रहते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये देख लिए, इनको जानना बहुत जरूरी है। यही ये थ्योरी दी है जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी सारी आइडिया इनकी ही है। तो अब इतना समझ गए, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखिए ये यस क्या बोलते हैं, सर। इंटरसेक्शनलिटी और इंटरसेक्शनल थ्योरी is a term first coined by him, sorry, by her in 1989। ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया। और शी इज लीडिंग स्कॉलर ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी। शी इज लीडिंग स्कॉलर ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी, मतलब रेस पे, कि व्हाइट रेस, ब्लैक रेस, निग्रो, कॉकस। तो ये रेस के अगेंस्ट, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट के अगेंस्ट हैं, क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल कास्ट थ्योरी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को क्रिटिकल कास्ट थ्योरिस्ट माना जा सकता है, और साथ में फेमिनिस्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि उनका एक लाइन है कि यू वांट टू सी द रियल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, जस्ट सी द प्रोग्रेस ऑफ वीमेन। तो इस लाइन से साफ पता चलता है ही वॉज अ ग्रेट फेमिनिस्ट
एंड ऑब्वियसली उनकी एक किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वो कास्ट के खात्मा की बात करते हैं, तो वो क्रिटिकल कास्ट थ्योरिस्ट भी हैं। चीजें समझ में आ रही? तो इन द सेम वे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएस में है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, और फिर उसमें वीमेन का भी कलर आ जाता है, तो यहाँ रेशियल रेस को क्रिटिकली देखते हैं, इसलिए ये क्रिटिकल रेस थ्योरिस्ट भी हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, बहुत क्योंकि ये इनके जो राइटिंग है बहुत बड़ा है, बट इन शॉर्ट आपके लिए ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एकदम बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये अध्ययन किसका है? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सोशल आइडेंटिटी, मतलब जो सामाजिक पहचान है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई एक महिला है, साथ में विद्यार्थी भी है, हिंदी बोलने वाली भी हिंदू भी है, बिहार की रहने वाली है, भारतीय राष्ट्रीयता है ना, रेस द्रविड़न है, ये सारी चीजें महिला है। तो ये डिफरेंट जो सोशल आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी मार्कर से ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि आप सब लोग वीमेन हैं, तो एक सर्किल में सब आ गए, सबका एक सर्किल वीमेन होने के नाते जेंडर आइडेंटिटी हो गया। दूसरा सर्किल कि आप सभी RMW कॉलेज के स्टूडेंट है, दूसरा सर्किल बन गया। तीसरा आप सब लोग हिंदी बोलते हैं, चौथा आप में से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, चौथा सर्किल। पांचवा सर्किल की कुछ अकबरपुर के होंगे, कोई लोग क्या होंगे रजौली के होंगे, कोई सदर नवादा के होंगे, ऐसा करके बहुत सारे सर्किल बनेंगे। लेकिन बहुत सारा जगह इंटरसेक्शन होगा, खैर हम तो दोनों एक ही कॉलेज से, दोनों पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, दोनों मतलब लगभग एज ग्रुप 18 से 20 या 21 या 22 के बीच में है। तो ये सारे जो सोशल आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी मार्कर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये सारी चीजें समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब है यस सर। जैसा IM यंग बोलते हैं, ऑपरेशन एंड डोमिनेशन की बात करते हैं, तो ये भी इस बात को मानते हैं कि ऑपरेशन है, महिला होने के नाते, ब्लैक वीमेन होने के नाते, लो कास्ट होने के नाते, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन सिख होने के नाते, सो एंड सो लैंग्वेज पढ़ने के नाते, सो एंड सो देश से होने के कारण, इंडिया से हो इसलिए, पाकिस्तान से इसलिए। तो ये सारी चीजें, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे मैंने कल बताया था नेल्सन मंडेला के बारे में, उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के अगेंस्ट थे वो, और मोटा मोटी रेस के अगेंस्ट थे वो, ब्लैक कलर ऑफ स्किन के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट थे वो। तो उनके लिए फ्रीडम क्या था? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो मोटा मोटी ये भी इस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, क्रेनसॉ, किम्बरले, क्योंकि सेम उनका भी रेशियल सेटअप सेम है। तो इतना तक चीजें समझ में आई सबको? यस सर। ओके। तो यस अब सर। हम चीजों को आगे आगे एक्सप्लोर करेंगे कि इनका क्या और मानना है। तो इनका जो सिद्धांत है, इनका जो थ्योरी है, फर्दर क्या बातें कहती है और एग्जामिन करती है और बताना चाहती है, वेरियस बायोलॉजिकल कैटेगरी। अगर मैं बायोलॉजिकल कैटेगरी बोलूं तो जैसे मेल फीमेल, रेस कि मेरा नाक ऐसा है, मैं काला हूं, मैं निग्रो हूं, या मैं मणिपुरी मिजो रेस का हूं, मैं नागा रेस का हूं, है ना। फिर मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है, मेरा एज ये है, मेरा मेंटल स्टेटस ये है, मेरा हेल्थ कैसा है। तो ये सारे बायोलॉजिकल कैटेगरी हैं, समझ गए? यस सर। है ना। अब हम बात करेंगे सोशल कैटेगरी की। तो सोशल कैटेगरी जैसे कि मैं एक सॉरी मेन हूँ, आप लोग वीमेन हो, मैं साथ में मेरा कोई कास्ट है, मेरा कोई रिलीजन है, तो ये सब क्या है? सोशल कैटेगरी है। फिर कल्चरल कैटेगरी, मैं बोलूंगा कि मैं फलाने संस्कृति को फॉलो करता हूँ, मैं छठ मनाता हूँ, कोई बोलेगा मैं ईद मनाता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं गुरु पूर्णिमा बुद्ध का गुरु पूर्णिमा मनाता हूँ, कोई बोलेगा जैसे कल गुरु नानक जयंती है, मैं खालसा का समर्थक हूँ, मैं गुरु नानक का मतलब फॉलोअर हूँ।
तो ये एक तरह से सोशल कम लेकिन कल्चरल ज्यादा, ये कल्चरल कैटेगरी में आएगा। तो ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आया। यस सर। सो इस प्रकार मैंने Yes, आपको क्या sir. बताया, कि ये जो इंटरसेक्शनलिटी को बताते बताते वो तीन भागों में बांटते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। फिर बायोलॉजिकल में बहुत सारे हैं, सोशल में बहुत सारे हैं, कल्चरल में। सो वी कैन से according to the intersectional theory that there are various categories, and it can be biological, social and cultural. And further biological category may have like the identity or identity marker. Like what is that? That is based on your biological basis. It can be what, that I am a male, you are a female, my racial setup is so and so, my mental health is so and so, my age is so and my sexual orientation is so and so. These are nothing but the biological category of identity, or we can say identity marker. Now the second one is what, the social identity or social category. Then we can say social category, obviously being the part of society, we have some identity that I belong to so and so caste, I belong to so and so religion, I belong to so and so language community, I belong to so and so social group. So these are nothing but the social category. And finally, and the last one, that is the cultural category. Obviously, we can say the cultural category have, like I belong to Maghi culture. We belong to Maghi culture. We used to celebrate Chhat. Then obviously someone say, no, no, I'm in the, I'm we living in, we were living in, we have been living in Bihar, but we have different culture. Like we belong to Muslim community, belong to Jain community, we belong to Buddhist community, we belong to Sikh community. So these are nothing but the cultural categories of identities. And finally, I want to emphasize that such different identities intersect, means there is a common thing among different identities, that is nothing but the intersectionality of identity. तो अभी तक जो चीजें मैंने बताया समझ में आया है? यस सर। और मैं ये Yes, sir. Yes, sir. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी अगर वो वीमेन है और विमेन होने के नाते उनके साथ इनजस्टिस हो रहा, सिर्फ ये एक कारण नहीं हो सकता, वो ब्लैक विमेन है तो और इनजस्टिस का लेवल बढ़ जाएगा, वो पुअर है, गरीब है, लोअर क्लास से, और उनके साथ दिक्कत हो जाएगी, पता चला मुस्लिम है और दिक्कत हो गया। तो इस प्रकार साइमल्टेनियस लेवल पे मल्टीपुल उनके जो आइडेंटिटी है इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और फाइनली उनको एक इनजस्टिस के कंडीशन में डाल देते हैं। चीजें समझ में सर आई? ये हाँ, सर सोशल एंड कल्चरल कैटेगरी में ये लैंग्वेज नहीं आएगा कि हम कौन सा ऑब्वियसली लैंग्वेज यूज कर कल्चरल कैटेगरी में लैंग्वेज आएगा, यस सर। मगही, मैथिली, तमिल, तेलुगु, हाँ कश्मीरी, डोगरी, मणिपुरी, ये सब आएगा। ठीक है सर। समझ में आए? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो आपने देख लिया है, यहाँ और होगा, गलती से एंड लिखा गया, इंटरसेक्टिंग और या ऑब्लिक, ओवरलैपिंग, ठीक है, दोनों एक दूसरे का सिनोनिमस है, समानार्थक और पर्याय है, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने दिखाई दिया था आपको, कोई दिक्कत? Sir, नो सर। ethnicity जी चाहिए. बताइए बताइए, पूछिए। Ethnicity. ओके, एथनिसिटी। देखिए, एथनिसिटी को पहले हिंदी अनुवाद होता है निर्जातीयता। जैसे मैंने बताया था कि ट्राइबल आइडेंटिटी, जैसे नागा, मिजो, मणिपुरी, है ना, cookies, these are different tribal identity, and such identity are considered to be ethnic identity। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे आदिवासी पहचान की बात की, आदिवासी एकमात्र पहचान नहीं है, आदिवासी के अंदर विभिन्न आदिवासी हैं, आदिवासी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइबल्स है। व्हेन आई से tribes. So it's a larger word. And within tribes, different kinds of tribes, like, Naga tribe, Manipuri tribe, Mizo tribe,
Kuki tribe. These are number of tribes within it. So they are called with the different names. And these identities are nothing but ethnic identity. समझ में आया? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, अब आगे बढ़ो. Yes, sir. हाँ, कुछ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बता सकते. ठीक है, कोई बात नहीं. नो सर। ठीक है. अब अगर फाइनली कंक्लूड करना चाहूँ इस टॉपिक को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने वाली बात ये होगी कि इस थ्योरी के आ जाने से एक अलग अंडरस्टैंडिंग बना. जो राइटिंग था जस्टिस का, विमेंस को ध्यान में रख के, कॉन्टेक्स्ट में ला के, वो और ब्रॉड हुआ, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और वेरिएबल्स ऐड हुए, जैसा आपने देखा रेस, क्लास, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एंड a number of identity markers. So finally, I will conclude this lecture by saying that the contribution of Kimberly William Crenshaw is that she has contributed. देखिए क्या होता है, हमेशा ही निकलता है. दिस इज व्हाट इनजस्टिस. अब सी निकलता ही नहीं, क्योंकि बहुत कम वीमेन स्कॉलर हैं. So this is what a kind of injustice meted out on the basis of different kinds of identity, especially the gender identity. Okay, so we don't have such words to say neutrally to, and automatically for C I'm using he. So this is a kind of what that narrative kind of discrimination, that automatically my tongue or my mind thinks and contemplate he first. And obviously here I have to talk about the women. So obviously automatically our tongue should be very much ready to start with C. But now I have means myself number of times instead of C I have said he. ऐसा है कि नहीं? मैं बार बार ही शब्द का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ, जबकि सी के बारे में बता रहा हूँ. इज इट सो और नॉट? यस सर। तो ये भी एक आइडेंटिटी मार्कर है यस डिस्क्रिमिनेशन. सर। सोसाइटी में जो बरसों से ही ही जो चला है ना, वो जो पैट्रियर्कल डिविडेंट है ना, फाइनली मैं बता रहा हूँ विमेन थिंकर के बारे में, लेकिन मुझसे ही निकल रहा है. तो इसमें मेरी तो गलती है ही, लेकिन ये जो सोसाइटी का जो एक ताना बाना है, जो चलन है, उसका भी प्रभाव है. सो आई शुड बी वेरी मच कॉशियस while saying or using the word when talking about anyone. If I'm talking about she, then obviously my word and my mind should contemplate she only, not he. And it rarely, sometimes it happens that I'm contemplating he, and myself means for me I have used she. So this is what a slip of tongue. But what I'm talking just a few minutes ago, this is not the slip of tongue. This is what a kind of ancestral contribution, or better to say the patriarchal dividend. तो मैं यही अब इस लेक्चर को इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा. जो इंटरसेक्शनल थ्योरी है वो ये मानता है कि लोगों को बहुत आधार पे, जैसे जाति, धर्म, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे बहुत सारी मूवी मनोज बाजपेयी की आई थी, उसमें थर्ड जेंडर और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनकी जो सोशल ओरिएंटेशन है, सॉरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसके नाम पे सोसाइटी उनके साथ क्या क्या नहीं की, टॉर्चर की, मारपीट की, उनका भी एक अपना इमोशनल सेटअप है. तो ये